Hello, good evening everyone. Myself Pawan Jain and I am Senior Research Analyst at Stockage. In Stockage, today we will cover the four features from Stockage: market breadth, sector rotation, sector analytics, and FNO zone. Right? After every feature, we will take few questions, then move to the another feature. Okay. So let's start with market breadth. Basically, what is market breadth and how we can use this. So this is market breadth. This is the UI of the market breadth. On the left side, there are all the indices are there, and on top of that, we can see RS 55, SMA 20, 50, 100, and 200, and the numbers are showing that how many percentage of stocks from these particular indices are fulfilling all the criteria. So clearly, Nifty 50 is showing that only 36% stocks that are RS positive, SMA 20 के ऊपर 10% stocks, SMA 50 के ऊपर सिर्फ 8% stocks from Nifty 50 are trading above SMA 50, and 16% stocks are trading above SMA 100, and 48% stocks are above SMA 20. So maximum number of stocks that are trading below the important short-term and long-term SMAs. For a broader view or for more details, we can click here, and by clicking here we can see day by day the performance of Nifty 50 is decreasing. The data is showing weakness continuously, and after so much of sell off, what we can see that जो maximum stocks थे, those are almost trading below the SMAs. Now on the contrarian, we can also assume if data started showing some strength from here, we can also see some kind of bounce back also. So basically this was Nifty 50. For broader view of the market, we can click on Nifty 500. Same thing is also we can see in Nifty 500 that only 30% stocks that are RS positive, only 13, 11 and 19 percentage of stocks that are above SMA 100, 50 and 20, और सिर्फ 41% स्टॉक्स जो अभी 200 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. तो एक क्लियरली ओवरऑल निफ्टी 50 और निफ्टी 500 में हम लोग को पता चल रहा है कि नहीं, जो डेटा है वो क्लियरली वीकनेस दिखा रहा है. एंड नेक्स्ट इज पीरियडिकल हाई लो. दिस इज 1 year of periodical high low, 6 month, 3 month and 1 month. In 1 month we can see slowly the number of stocks that were in low zone are slowly increasing. On 6th of November, there was only 53 stocks in Nifty 500 were trading in their low zone. Now, yesterday, the number has increased to 322. और हाई जोन में एक भी स्टॉक नहीं है, सिर्फ एक स्टॉक है, सॉरी. तो इसको कॉन्टेरियन भी हम लोग देख सकते हैं कि नहीं, अभी हाई जोन में कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा, तो निफ्टी शायद यहाँ से एक पॉज ले सकता है या नहीं ले सकता पता नहीं, बट डेटा दिखा रहा है कि नहीं काफी एक सेल ऑफ हो चुका है. एंड लास्ट वन इज बेसिकली नथिंग, जस्ट एडवांस एंड डिक्लाइन. सिमिलरली सिर्फ 27 स्टॉक्स जो ग्रीन में क्लोज हुए थे yesterday, एंड 473 stocks were closed in red. This data was on daily basis. You can also check on the basis of monthly. लास्ट काफी मंथ्स के बाद देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जनवरी 23 में भी ऐसा बुरा हालत नहीं था, बट नाउ इन नवंबर 24 only 65 stocks out of 500 were closed in green last. Let's quickly check Nifty 50 कि Nifty 50 का एडवांस एंड डिक्लाइन कैसा है. Same thing, only 4 stocks were in green and 46 stocks were in red. Same with periodical high low also.
सो दिस इज बेसिकली मार्केट ब्रेथ। ये हम लोग को एक मार्केट का अंडरटोन, मार्केट का सेंस बता रहे हैं कि नहीं मार्केट में अभी काफी सेलिंग है, और सिर्फ बहुत ही कम स्टॉक है जो अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन, देन वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट. All of you can ask your question. बाय और सेल का मेथड के लिए सर हम लोग सेक्टर रोटेशन पे स्टॉक्स का बात करेंगे। ये मार्केट ब्रेद है, बेसिकली टोटल मार्केट का क्या व्यू है या क्या चल रहा है अभी मार्केट में, वो डेटा हम लोग को दिखा रहे हैं कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। विशेष सर, फॉर सेक्टर वी विल कवर दिस इन सेक्टर रोटेशन. ओके. Okay, I think there are no more questions regarding market breadth. Color stand for. कौन सा कलर मीन्स रेड कलर, मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ग्रीन का मतलब क्या होगा, उस पर ज्यादा तेजी है। जब नंबर ऑफ स्टॉक्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स पॉजिटिव होंगे, इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज को मैच करेंगे, वो कलर उतना ग्रीन होता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 94% स्टॉक सितंबर में, इसमें 200 के ऊपर थे, तो वो बहुत डार्क ग्रीन हो गया। ऐसे में 2050 मीन्स इस 20 डे का ऐसे में, दिस इज 50 डेज ऐसे में, एंड दिस इज 100 डे ऐसे में, सिंपल मूविंग एवरेज. Okay, now let's move to the next feature, that is FNO zone. So अभी समझ में आ रहा है कि नहीं मार्केट डाउन है, तो ऑन द लेफ्ट साइड all the FNO stocks are there. This is OI trend, spot price, cumulative OI, volume and delivery. The upper part is volume part, means लास्ट 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है उसका कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ था, एंड द 3.7x that shows that द 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है, हाउ मेनी टाइम्स उसका वॉल्यूम हुआ था, राइट? And from here we can also filter aggressive new long, aggressive short, new short, right? Uh, According to our trading pattern or according to the market, we can filter. अगर किसी को aggressive new short करना है, किसी को short करना है, तो they can filter aggressive short also. From here we can see the last 7 days का data, कि last 7 days में क्या क्या हो रहा था, कैसे परफॉर्म किया था स्टॉक्स. तो दिस इज बेसिकली डेटा 13 नवंबर. हम लोग को यहाँ का भी डेटा देख सकते हैं, एक दिन 2 दिन पहले का भी देख सकते हैं कि नहीं क्या हुआ था. तो 2 days बैक आरती इंडस्ट्री एंड एशियन पेंट्स, यहाँ पे द वॉल्यूम एंड डिलीवरी वाज वेरी हाई, ऑल्सो प्राइस नीचे की तरफ करेक्ट भी हुआ. तो एक बार देखते हैं एशियन पेंट्स ने कैसा बिहेव किया. द डेटा वाज ऑन 11 नवंबर. उसके बाद तो गैप डाउन आया, और उसके बाद भी ये स्टॉक काफ़ी नीचे जा रहा है. आफ्टर द गैप डाउन ऑल्सो the stock has corrected more than 4% in last few days. Also, we can check Aarti industry. Same thing here also. So after getting the data, this data can help us to identify or to filter stocks according to our trading pattern. कि इतने सारे अराउंड 180 एफएनओ स्टॉक्स में आप लोग को फोकस कौन कौन से स्टॉक्स पे करना है, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस ये डेटा हम लोग को हेल्प करेगा. We can add the stocks to our watch list and
keep them on our trading view, right? Next is options. So in option, similarly, we can see uh, the stocks, PCR, change in PCR, spot price, and percentage change of that particular stock. So what is PCR? PCR basically put by call कि एक put जो writing हो रहा है उस कितने call के against में हो रहा है. So higher the number, that means ज़्यादा put writing हो रहा है. And this is 1 day change of PCR. So in we can see in Apollo Tyre सबसे ज्यादा पीसीआर चेंज अपोलो टायर और इप्का लैब में हुआ है, राइट? फॉर ब्रॉडर व्यू, जस्ट क्लिक हेयर एंड वी कैन सी डे बाय डे चेंज ऑफ पीसीआर, कि पीसीआर कब चेंज ज्यादा होना स्टार्ट हुआ. तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि स्लोली स्लोली यस्टरडे द अपोलो टायर का जो पीसीआर था वो एक के ऊपर चला गया. एंड ऑन द लेफ्ट साइड वी कैन सी द क्यूमुलेटिव कॉल एंड पुट ओआई, that yesterday जो put writing थे, cumulative put writing was higher than call writing. That means the put writers will act as an support, कि ज़्यादा अगर put writing हो रहा है वो एक कॉल को, वो एक स्टॉक को सपोर्ट का काम करेगा. और यहाँ पे फ्यूचर्स में भी देख लेते हैं कि अपोलो टायर में कैसा ट्रेड हो रहा था, जो न्यू शॉर्ट और हो रहा था, अब धीरे धीरे यहाँ पे पीसीआर भी इम्प्रूव हो रहा है. तो दैट मीन्स कि अपोलो टायर में अब शॉर्ट नहीं जाना चाहिए बेसिकली, बिकॉज द पीसीआर इज स्लोली स्लोली इंक्रीजिंग. नाउ लेट्स चेक द चार्ट ऑफ अपोलो टायर. ये डेटा हम लोग को कल ही मिल गया था ऑन 13th November, and this was the candle of 13th November, and the data was clearly showing us that we should not go short at that particular time because the PCR slowly moving on the upside, right? That's how we can use this data and trade accordingly, right? So this is basically derivative analytics, how we can use this, the future and options data, and filter our stocks according to our trading patterns. So let's quickly take few questions. Jaya ji, या दिस वाज ऑन 13 नवंबर, बिकॉज ये कल का डेटा है. आज का जो डेटा है वो एक्सचेंज में अभी तक अपलोड नहीं हुआ है. आफ्टर द डेटा विल गेट अपलोडेड इन एक्सचेंजेस, यहाँ पे भी वो स्टॉकेज में आपको दिख जाएगा. दीज आर बेसिकली ईओडी बेसिस डेटा. एवरी डे आफ्टर ऑलमोस्ट 7 p.m. we can, 7 or 7:30 we can check that. Yeah, Bhaskar sir, we will also cover the sector rotation after that. पीसीआर इज बेसिकली पुट बाय कॉल रेशियो. यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि जब यहाँ पे देखिए कि नहीं, पुट जो ज़्यादा है, पुट डिवाइडेड बाय कॉल, ये क्यूमुलेटिव पुट के साथ क्यूमुलेटिव कॉल को जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा कि पुट का जो राइटिंग हुआ है वो 1.08 टाइम्स ज़्यादा हुआ है कंपेरेटिव टू कॉल्स, राइट? दिस इज बेसिकली पीसीआर. हाँ सुनील सर, पीसीआर इज इम्पोर्टेंट. अगर पीसीआर धीरे धीरे अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि पुट राइटिंग ज़्यादा हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो हम लोग को उस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज पीसीआर अगर बढ़ रहा है ना, तो जो पुट राइटिंग ज़्यादा हो रहा है वो एज ए सपोर्ट काम करेंगे. पीसीआर इज ग्रेटर देन हाई, दैट मीन्स more put writing is happening in that particular stock than vis-a-vis call.
Okay, now let's move to the sector rotation part. How we can use this. So this is basically sector rotation. ये sector rotation का पेज है. There are two parts, two levels in sector rotation. Level 1 and 2. This is basically level 1. यहाँ पे सेक्टर का ब्रेथ पता चल जाएगा. Which are the sectors are strong? We can clearly see rating, miscellaneous, IT, ferromanganese. These are the sectors that are strong क्योंकि वो बहुत डार्क ग्रीन में है. And scrolling down, we can also check electronics, reality, media, abrasive, finance, power, diamond and jewelry, mining. These are the sector we should avoid because यहाँ पे अभी स्ट्रेंथ है नहीं. ब्रेथ के साथ में देर इज डिलीवरीज ऑल्सो. अगर किसी को डिलीवरी के साथ सेक्टर्स को चूज करना है तो वी कैन ऑल्सो फिल्टर कि कौन कौन से सेक्टर पे या कौन कौन से स्टॉक्स पे डिलीवरीज और वॉल्यूम्स बहुत हाई हुआ था. सो यस्टरडे रिटेल में पूरा रिटेल का मार्केट कैप जो है उसको वो भी 14% बढ़ा था. एंड द वॉल्यूम एंड डिलीवरी वाज वेरी हाई. ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का वॉल्यूम हुआ था और 3 टाइम्स का ही डिलीवरी हुआ था. तो दिस इज लेवल 1. अब अगर हम लोग को देखना है विच आर द स्टॉक्स जहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी काफी हाई हुआ था. फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्लिक हेयर एंड बाय क्लिकिंग हेयर, सॉरी, बाय क्लिकिंग हेयर we will get all the stocks name. So these are the stocks जहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी काफी हाई था. Coming back to the market, sector rotation breadth. After getting the strong sectors, now our next step is how we can identify which are the stocks that are showing strength. So just click here. This is level 2 of sector rotation. एक बार पता चल गया कि नहीं ये सेक्टर स्ट्रांग है. अब उस सेक्टर में विच आर द स्टॉक्स दैट आर स्ट्रांग. फॉर दैट वी हैव टू गो टू टेक्निकल्स. so these are the levels that we can use: previous day, weekly, monthly high, 50-week high, all time high, SMA. So these all the criterias are there. You can select according to your choices. मैं एक बार EMA को लेके एग्जांपल लेता हूँ. so there are 5 EMAs. The 5 EMAs are 5, 20, 50, 100 and 200. So if any particular stock, if trade above all the EMAs, उसका मतलब कि उस स्टॉक में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है. दैट्स व्हाई द पर्टिकुलर स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस. सो in rating we can see care rating is trading almost above all the EMAs, just trading below its 5-day EMA. So let's take care rating once. Let me put all the moving averages. So these are 10, 20, 50 moving averages. After taking support from 20 moving average, आप देखो कि the stock again trying to go on the upper edge. जब ये डेटा मिल गया, अब what we can do, we can just select here and set an alert. Whenever the stock crosses the swing high, we will get an alert, right? So from this data, from sector rotation data, we got the strong sector and identified which stock is doing good, and then come to the chart. If our risk reward ratio is in our favor, then we can trade. Our trading decision will be decided by the price action. Now let's take one more example of another sector and stock. See, information technology.
this particular sector is also showing strength because almost 80% stocks are above 20 SMA. From information technology sector, which industry is doing good, right? So in information technology, we can clearly see IT education, e-commerce is doing better than the other ones. So let's click on e-commerce, go to see day by day from 11th November, that particular industry from that sector is slowly showing strength. Now go to technicals, and again we will go to EMA and find out which are the stocks that are strong in that particular sector. So Zomato is there, right? Car Trade is there, Infuse Solution is there. So let's quickly take example of these two three stocks, Zomato and Car Trade. See, Zomato again after making a base, again trading above all the EMS, trading near a support, near a breakout. If process that may move higher also. One more example was Car Trade. See, Car Trade is trading above all EMS और अभी एक लास्ट 2 दिन से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है. तो सेम वे वी कैन set an alert here, right? So in short, the process is go to sector rotation. Once we get the data, which are the sector is strong, now next step will be go to that particular sector and finding which are the stocks that are strong and trade with a trading plan, right? So let's quickly take few questions regarding sector rotation. Then we will cover the sector analytics part. फिर ये कैसे पता चलेगा लेटेस्ट सेक्टर में पैसा जा रहा है? उसके लिए हम लोग को ना सेक्टर का ब्रेथ देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे आप देखो जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गए भास्कर सर, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखो कि ई कॉमर्स का डेटा धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है. अगर हम लोग आज का डेटा आ जाएगा, अगर यहाँ पे 75 78 या समथिंग कुछ भी हो, अगर बेटर डेटा आए तो दैट मीन्स कि यहाँ पे और अच्छा बाइंग हो रहा है. ऐसे जो सेक्टर स्ट्रांग है हम लोग को उसका ब्रेथ देखना है. अगर ब्रेथ धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है दैट मीन्स उस सेक्टर में स्ट्रेंथ है, उसी सेक्टर के साथ रहना है. आई थिंक इट्स क्लियर नाउ भास्कर सर. आईटी को कैसे पता चला? यहाँ पे तो दिख रहा है ना सर कि ई सॉरी, यहाँ पे तो डेटा मेरे को दिखा रहा है कि ये स्ट्रांग है. एक बार उस पर जाके मैंने देखा, फिर आईटी में देखा कि कौन सा इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है. तो आईटी एजुकेशन और आईटी ई कॉमर्स ये दोनों अच्छा कर रहे हैं. एक बार एजुकेशन में भी जाके देखते हैं. यहाँ पे देखिए डेटा सेम है, अब धीरे धीरे और स्ट्रांग नहीं हो रहा है. तो ये डेटा जब और स्ट्रांग होगा सेम वे टेक्निकल्स में जाएंगे, ईएमएस में जाएंगे. तो आप देखो कि एनआईटी एंड बीआईटीएस, एनआईटी को देखते हैं एक बार. एनआईटी अभी ऑलमोस्ट डबल टॉप बना के नीचे आ रहा है. तो जब ये डेटा और स्ट्रांग होगा ना तब पता चलेगा कि नहीं इस सेक्टर पे कुछ ना कुछ हो रहा है. ये डेटा को और स्ट्रांग होने दीजिए. जैसे यहाँ पे डेटा वीक था, यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ, धीरे धीरे आप ट्रेंड देखो फ्रॉम 67 69 74, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? कॉमन सेइंग मेटल्स सेक्टर, आयरन एंड स्टील.
अगर आयरन स्टील में देखें, मेटल फेरस में जो स्टॉक्स है सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, सारे आरएस के नीचे, तो इस पे फोकस नहीं करना है। आयरन स्टील में एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। इसका अगर ब्रेक दें, सी, जो 87 60 44% था, नाउ सिर्फ ओनली 1% और 2% स्टॉक दैट आर ट्रेडिंग अबव 20 SMA। तो इनके सारे चार्ट्स भी खराब होंगे। अभी इनको इस सेक्टर को फोकस ही नहीं करना है, बिकॉज इट्स नॉट इन strength, right, Sanjay sir? Let's go to technicals and see how they are behaving. JSW, Tata Steel, Jindal Steel, एक बार चार्ट देख लेते हैं इसका। See the charts. 200 DMA के भी नीचे आ गए टाटा स्टील। सेम थिंग। तो ट्रेंड इनका डाउन है, स्टॉक फॉल करे जा रहा है, और डेटा भी मेरे को दिखा रहा है कि यहाँ पे वीकनेस है, इससे दूर रहना है। दैट्स हाउ वी कैन अवॉइड बाइंग ए वीक स्टॉक और वीक सेक्टर, राइट संजय सर? ओके ओके, थैंक यू। So now let's quickly the final part, that is sector analytics. So till now हम लोग जो भी sector rotation देख रहे थे, that were based on technicals. Now sector analytics can help us to identify sector and stocks on basis of fundamentals. कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग और रिजल्ट दो पार्ट है। पहले शेयर होल्डिंग एक बार कवर कर लेता हूँ, इजी है वो। कि प्रोमोटर, एफआईआई एंड डीआईआई, विच आर द सेक्टर्स जहाँ पे एफआईआई ने, डीआईआई ने या प्रोमोटर ने स्टेक इंक्रीज या डिक्रीज किया, वो डेटा हम लोग को मिल जाएगा। तो जस्ट क्लिक हेयर एंड वी कैन सी कि नहीं, डीआईआई स्लोली स्लोली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेडिंग जो सेक्टर है उस पर धीरे धीरे स्टेक बढ़ रहा है। एंड कौन से स्टॉक्स हैं इस सेक्टर पे, फॉर दैट जस्ट क्लिक ऑन ट्रेडिंग एंड दीज आर द स्टॉक, जस्ट क्लिक ऑन करंट पीरियड की अभी इस क्वार्टर के जो नंबर्स है उसके आ जाएंगे। तो दीज आर द स्टॉक्स जहाँ पे, जैसे देखिए एंट्रो हेल्थ सॉल्यूशंस, हेल्थ केयर सॉल्यूशन, इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक जो डीआईए का होल्डिंग है वो काफी बढ़ गया है, फ्रॉम 2% इट्स मूव टू 8%। दैट्स हाउ वी कैन सिलेक्ट और वी कैन चेक कि कौन कौन से सेक्टर के जो एफ आई डी आई का प्रोमोटर उनका होल्डिंग क्या है। नाउ लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज रिजल्ट्स। तो इन क्वार्टरली, ईयरली sales growth, EBITDA growth, and PAT growth. These three things we can check in all the sectors, right? So in consumer durables, quarter on quarter देखिए degrowth है, and 40 stocks have delivered their results out of 59 stocks, right? रियलिटी में जैसे देखिए थोड़ा ग्रोथ आया, इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रोथ अच्छा है। तो एक बार देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटायर सेक्टर का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, दैट वाज 20% एंड ईयर ऑन ईयर 27%। अब एनुअली अगर देखें, तो इलेक्ट्रिकल्स में 16% का ग्रोथ है, राइट? दिस इज एनुअल बेसिस सेल्स ग्रोथ। नाउ टेक द एबिटा पार्ट। एबिटा भी 9% मार्जिन बढ़ा और ईयर ऑन ईयर 2.4% बढ़ा। एंड पैट ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट मार्जिन वॉज हायर बाई 5.7%। नाउ चेक which are the stocks that has done better than the entire sector. So KEI industry, right? Kens technology, Diamond Power, Precision Wire. So these are the stocks that has done well with their respected sectors. और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी देख ले रहे हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने पूरे एंटायर सेक्टर को आउट परफॉर्म किया। तो डिक्सन इज देयर, राइट?
NetWeb Technologies, Eureka Forbes, E2E Network. So these are the stocks and sectors. PGL, no, PGL has, PGL ka growth. This time PGL growth was not good. So clearly Dixon and NetWeb and Eureka, these are the 2-3 stocks that were very good. So this is the process how we can identify which sector and stocks that are doing good on basis of their quarterly and annually sales growth, EBITDA growth and PAT growth. So the benefit is whenever we see the similar sector comes in sector rotation, then we will have more confidence, because if a particular sector that has done well फंडामेंटली, अगर उसी सेक्टर में टेक्निकली भी अगर वो स्ट्रेंथ दिखाए, तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का कंफर्मेशन हमारे पास होगा, तो हम लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा उस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स पे ट्रेड करने का. ओके, so this is basically sector analytics that can help us to identify stocks and sectors according to the fundamentals. Okay, now let's quickly take few questions, right? This sir is saying past history, please. Sir, यहाँ पे past history है from Jan 22. We have the data. Biplab sir, alert. How to set an alert on stocks? You are trying to say. Buy sell method based on your technical setup. Manik sir. Yes, Kiran sir, this data can help us to identify stocks for longer term also. If any particular sector and stocks is doing good quarter on quarter for last few quarters, so we can assume that the stock or the sector is fundamentally sound. Okay, so thank you everyone. This is from my side. Just this data gets refreshed after every quarter. Okay. So Rajesh sir, are you there? Hello. Let's quickly take a few more questions till my Amreza comes. Yes, Pavan, I'm here, Pavan. Okay, Amreza. Now you can start. Okay, Pavan. Thank you, Pavan. Very nice session. Thanks. Welcome. Good Good evening, everyone. My name is Amresh, and today we will discuss about the trading strategies part on Stockage. So, start करते हैं. So, in Stockage scan, we have three type of scans for intraday, swing, and for positional trade. So, first we will start with the intraday scans. So, on the bullish side, there is no stocks. So, we will take the scans on the bearish side. So in a scan section, there are three type of scans. One is momentum, second one is continuation, and the reversal. It means momentum means price में अचानक एक
तेजी आया है, सॉरी ये मंदी आया है। और जो कंटिन्यूएशन है, इट मीन द प्राइस इन डाउन ट्रेंड, मतलब लोअर लो बनाया जा रहा है। और दो रिवर्सल होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में था, वहां पे एक बाइंग आया और फिर से प्राइस जो डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा। तो इस टाइप के स्कैम्स हमारे पास आते हैं। सो हमारे पास अभी सिर्फ चार स्कैम्स है जो मोमेंटम है, तो देखते हैं वो कैसे हैं, हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्कैम, जो बन के ये स्कैम बना है, जो क्या क्या पैरामीटर्स इसमें इंक्लूड हुए हैं। और इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम जैसे देख सकते हैं कि हाउ वी कैन ट्रेड। सो इन दिस स्ट्रैटेजी अवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:5। इट मीन्स अगर स्टॉप लॉस 1% का रख रहा है तो टेक प्रॉफिट 1.5% का होगा। और 3:20 तक ये स्कैम को ये ट्रेड को हमको क्लोज करना होगा। तो इट्स इंट्राडे स्कैम, वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड फॉर द नेक्स्ट डे, हम उसको सेम डे ही स्क्वायर कर लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए थे। तो अदानी पावर, बालकृष्ण, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड SBI लाइफ। So in the scan, we have to first mark the first 15 minute candle high low, means 9:15 से 9:30 का जो कैंडल फॉर्म होता है उसका हाई लो हम लोग मार्क कर लेंगे। अगर हम लोग अप साइड में ट्रेड करेंगे, लॉन्ग साइड में, तो हम 15 मिनट कैंडल का हाई जब ब्रीच करेगा उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। और अगर बीरिश साइड में ट्रेड कर रहे हैं, सो जब 9:30 का जो कैंडल है प्राइस है उसके नीचे जाएगा तब हम उसमें ट्रेड लेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक्स कैसा है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो फर्स्ट ही अदानी पावर। तो हम अपने चार्ट को 15 मिनट में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे 15 मिनट का हाई लो हम लोग मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने 15 मिनट का कैंडल को ब्रीच किया था, फिर ऊपर गया और फिर एक फ्लैट नोट पे ही क्लोज दिया। तो हिसाब से एक फ्लैट नोट पे ही बंद हुआ, नाइदर प्रॉफिट नो लॉस के साइड में। सेकंड स्कैन इन बालकृष्णन इंडस्ट्रीज। सो दिस इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई एंड दिस वन इज लो। सो यहाँ पे हम क्लियरली विजुअल देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने 15 मिनट लो को डाउन साइड ब्रीच नहीं किया। ओपन होने के साथ प्राइस ऊपर गया और डाउन डाउन साइड को ब्रीच नहीं हुआ, तो ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आवर थर्ड स्कैन इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। So here we have marked the first 15 minute candle high low. सो प्राइस ने इसको ब्रीच किया था, बट प्राइस फिर ऊपर से आ गया, तो प्रॉब्ली ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया होगा। प्राइस ने यहाँ पे काफी अपसाइड मूव दिया है। दो मार्केट अभी वैसा सेलिंग प्रेशर है, तो सेलिंग के साथ शॉर्ट कवरिंग भी आते रहती हैं। और बाजार अभी काफी ज्यादा डाउन साइड में है, तो शॉर्ट कवरिंग नॉर्मल है ऐसा मार्केट में। और हमारा जो लास्ट स्कैन है वो है स्टेट SBI लाइफ। सो हियर इज द फर्स्ट 15 मिनट कैंडल हाई लो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने 15 मिनट लो को ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो दो इंट्राडे के स्कैम्स उतने अच्छे नहीं आए थे हमारे पास, क्योंकि मार्केट वैसा लॉन्ग साइड में कुछ भी नहीं आया था, बेरिश साइड में है। तो इंट्राडे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस। संजय सर, अब सर वी आर नॉट हियर टू डिस्कस अबाउट द स्टॉक्स। स्कैम्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप क्लब में पूछ सकते हैं, हम लोग वहाँ पे वो रिजॉल्व कर देंगे। ओके सर, ओल्ड एग्जांपल्स कुछ ले लेते हैं हम लोग।
तो लास्ट डे के हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रिटानिया मैरी को देख लेते हैं। सो ब्रिटानिया का ये लास्ट डे का कल का हाई लो था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने लो साइड को ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ मैरी को। तो ये जो कल का था, यहाँ पे भी मैरिको में भी प्राइस ने अपने लो को ब्रीच नहीं किया, तो फॉर दैट ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और कल के डेट में कुछ लॉन्ग साइड में ट्रेड देख लेते हैं, अगर कुछ आए होंगे तो। तो कल के डेट में जो मार्केट डाउन था, तो लॉन्ग साइड में कोई ट्रेड नहीं है। तो फिर हम अपना नेक्स्ट जो है पार्ट, वो अपना इस साइड में स्टार्ट करते हैं, स्विंग बुलिश स्ट्रेटजीज के साइड में। सो यहाँ पे भी ईगल है, जो एक मोमेंटम स्कैन है, जो मैंने फर्स्ट बताया कि प्राइस में अचानक मोमेंटम आया, ये स्कैन हमको उस टाइप के स्टॉक्स देते हैं। डव है जो कंटिन्यूएशन है, मीन्स द प्राइस मेकिंग हायर है, तेजी वाले स्टॉक्स है। फीनिक्स एक रिवर्सल स्कैन है, इट मीन्स प्राइस अप ट्रेंड में था, माइल्ड करेक्शन आया और फिर से प्राइस अपना तेजी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ईगल मोमेंटम में दो स्टॉक स्कैन आए हुए हैं, और डव में एक, तो हम देखते हैं इसको। So though it's a momentum scan and swing scan, तो यहाँ पे देखते हैं हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो हेयर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:2। फॉर एग्जांपल अगर 5% का स्टॉप लॉस है, देन आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 10%, एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 2 to 30 days, मीन्स एक महीने तक इस ट्रेड में हम बने रह सकते हैं। स्कैन हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा पैरामीटर यहाँ पे मर्ज किया गया है स्कैन को बनाने के लिए। ये थोड़ा सा टेक्नो फंडा स्कैन है, इसमें थोड़ा फंडामेंटल डेटा भी लिया है स्कैन को बनाने के लिए। तो देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास दो स्टॉक्स हैं, कोफोर या इक्लाक्स, तो देखते हैं। कोफोर दो आवर स्कैन ईओडी स्कैन। तो कल के डेट में इस कैंडल के क्लोजिस के बेसिस पे ये स्कैन हमारे पास आया हुआ था। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट लेवल कि किसके ऊपर में हम ट्रेड ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो एज पर माय व्यू, ये इसका जो स्विंग हाई है 1860, इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है तो हम एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और ये लेवल मेरे को एक स्टॉप लॉस जोन के हिसाब से मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ये एक प्रीवियस ब्रेकआउट था। जैसे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया और फिर प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड लिया यहाँ से। तो इस हिसाब से ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है तो इसको हम अपना स्टॉप लॉस जोन बना सकते हैं। सो हियर आवर रिस्क इज अराउंड 4%। सो हमारा टेक प्रॉफिट होगा 8%, क्योंकि 1:2 का स्ट्रेटजीज पे हम काम कर रहे हैं। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है, अपना जो हाई है 1860, देन प्राइस कैन टेस्ट अपना 8% का टारगेट हम लोग रख सकते हैं, जो कि करीबन हो जाएगा 8778। दूसरा स्टॉक देखते हैं, इक्लाक्स। इक्लाक्स का स्कैन हमारे पास कल आया था। सो ऑन दिस कैंडल क्लोजिंग बेसिस वी हैव गॉट द स्कैन। सो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट लेवल। सो यहाँ पे विजिबल है कि प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर में अपसाइड में ब्रीच करता है तो हम ट्रेड को ले सकते हैं, जो कि है 3443। एंड एज पर माई व्यू, ये लेवल हमारा एक स्टॉप लॉस जोन बन सकता है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। सो अगर प्राइस इस लेवल को ऊपर में अगर ट्रेड करता है, सो वी कैन गो फॉर द लॉन्ग। एंड हेयर आवर स्टॉप लॉस इज अराउंड 7%। तो
हमारा टेक प्रॉफिट अराउंड 40% होगा यहाँ से। सो करीबन 3940 हमारा टारगेट रहेगा। दो मार्केट इज वेरी बियरिश एंड वोलाटाइल दोनों है। तो इफ वी गेट आवर 50% प्राइस यहाँ से रीच करता है तो हम अपना 50% प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, और रेस्ट हम उसको ट्रेल कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं कि अपने टारगेट को वो हिट कर दे। सो फिर हम लोगों ने यहाँ पे मोमेंटम स्कैन के स्टॉक्स देख लिए, और हम लोग देखेंगे डॉव जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है। तो यहाँ पे भारतीय एक्सागन हमारे पास आया हुआ है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास स्कैन आया हुआ था। तो फर्स्ट वी हैव विल आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट लेवल। सो ये लेवल अपने को दिख रहा है कि इस लेवल को प्राइस अगर ब्रीच ब्रीच करता है तो हम इसमें ट्रेड में बन सकते हैं, और ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है देन आवर स्टॉप लॉस ये करीबन 8% का आ रहा है। सो एज पर माई व्यू ऐसा मार्केट में 7-8% के जो स्टॉप लॉस वाले स्टॉक्स आ रहे हैं उनको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 8% से 16% प्राइस को टेस्ट करने में दिक्कत होगा। हम लोग ये कर सकते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से ब्रीच किया तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको अपसाइड में थोड़ा ट्रेल कर लेंगे। तो फिर क्या होगा कि प्राइस इस लेवल को अपसाइड में ब्रीच करता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा अपसाइड में मूव कर लेंगे, ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस जो हो वो जितना कम से हो कम हो वो बेटर है। सो इस सिनेरियो में लेते हैं अगर 8% का स्टॉप लॉस है, सो देन हमारा टारगेट वुड बी 16% फ्रॉम हियर, जो कि करीबन 1710 के करीबन आ रहा है। दो एक नया आईपीओ स्टॉक है और अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, प्राइस पैटर्न भी अच्छा लग रहा है, तो प्रॉब्ली आने वाले दिन में ये अपने टारगेट को हिट कर ले। और एंड हम मार्केट की वॉलेटिलिटी और जो अभी सेलिंग प्रेशर है, अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो 50% हम अपना टारगेट बुक कर लेंगे, और रेस्ट हम लोग ट्रेल करेंगे और वेट करेंगे कि प्राइस अपने टारगेट को हिट करे। सो हम लोगों ने जो स्विंग बुलिश स्ट्रेटेजी का पार्ट है वो कवर कर लिया। अभी हम पोजिशनल पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम स्टॉक ये है, मोमेंटम कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। सो यहाँ पे हमारे पास दो स्कैन्स आए हुए हैं, देखते हैं हम उसको कैसे ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन के पैरामीटर, कौन कौन से पैरामीटर इसमें मर्ज हुए हैं इसको ये करने में के लिए। और इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो दो इसे पोजिशनल स्कैन, तो आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3। इट मीन्स अगर 5% का स्टॉप लॉस है देन हमारा टेक प्रॉफिट 15% का होगा, एंड आवर लेंथ ऑफ द ट्रेड वुड बी 1 मंथ to 3 months, मतलब 3 महीने तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हैं। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स है, एप्पल एंड डिविस लैब। तो दो ये का ईओडी स्कैन है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग में, प्रीवियस डे के कैंडल के क्लोजिंग में हमारे पास ये स्कैन आया हुआ था। तो हम ऐसा क्लियरली देख ही सकते हैं कि प्राइस एक हल्के एक रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर प्राइस अपने कल के ट्रेड हाई जो है करीबन 1566 है ऊपर ट्रेड अगर करता तो ट्रेड हम लोग लेते, जो कि प्राइस ने उस लेवल को आज ब्रीच किया है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर स्टॉप लॉस जोन। तो यहाँ पे दिख रहा है ये जो स्विंग लो है ये हमारा स्टॉप लॉस जोन बन सकता है यहाँ पे। तो ये करीबन 7% का स्टॉप लॉस हमको दिख रहा है। तो यहाँ से 21% का एज पर द स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे टारगेट के लिए ये कर सकते हैं, जो कि करीबन 8178 के करीबन है। एंड जो मार्केट का सिनेरियो अभी जो है फिलहाल में, तो अगर प्राइस यहाँ से 50% भी अपना टारगेट हिट करता है तो हम अपना 50% पोजिशन प्रॉफिट बुक करेंगे, एंड रेस्ट हम ट्राई करेंगे कि अपने टारगेट को हिट करें या उसको हम ट्रेल कर सकते हैं। एंड हमारा लास्ट स्कैन इज डिवीज लैब।
तो डिविज लैब इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारे पास आया था स्कैन। तो यहाँ पे हम अपना रेजिस्टेंस लेवल देख लेंगे। तो यहाँ पे एक विजिबल है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड होगा तो हम ट्रेड को ले सकते हैं। एंड ये लेवल हमारा स्टॉप लॉस का रहेगा। एंड फ्रॉम हियर आवर स्टॉप लॉस इज 4.64 रफली, इसको 5% ही हम लोग लेते हैं। सो फ्रॉम हियर अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करता है, इस लेवल को अगर ट्रेड करता है तो हम ट्रेड में बनेंगे, जो कि है 5940। तो यहाँ पे 5% का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है, तो टेक प्रॉफिट वुड बी 15% फ्रॉम हियर, जो कि करीबन 6840 पे होगा। और प्राइस हम अगर 50% प्राइस यहाँ पे रीच करता है तो प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, और 50% हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो ड्यू टू बियरिश मार्केट स्कैन्स हमारे पास बहुत ही कम है, तो हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजीज पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। सो इफ एनी क्वायरी, तो फिर मैं क्वायरी लेना चाहूँगा। अब सर विनिंग प्रोबेबिलिटी सर मार्केट के हिसाब से ही हम लोग ये कर सकते हैं, ये कोई एल्गोरिदम्स है नहीं। अभी जैसे मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, या हमारे जो ट्रेड के क्वांटिटीज है तो वो थोड़ा कम करके ट्रेड ये करने पड़ेंगे। सर लास्ट मंथ का सक्सेस रेशियो सर वैसा हमारे पास कुछ है नहीं, बट ये सारे स्कैम्स बहुत माइन्यूटली बनाए गए हैं और काफ़ी रिसर्च इसमें किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी स्कैम्स हैं ये काफ़ी बढ़िया है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अरे सर, ये तो कोई एल्गोरिदम्स नहीं है सर कि कोई एल्गो मशीन चल रहे हैं कि हम यहाँ पे सेक्शन रेशियो आपको बताएं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये स्कैम का बहुत अच्छा, हमारा जो ईगल स्कैम है ये काफ़ी बढ़िया है, आप उस पर काम कर सकते हैं। जयसंग आस्किंग डज प्रोडक्ट सपोर्ट ओनली फॉर इंडियन मार्केट? ये सर करंटली सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए हमारे पास ये है। एनी एग्जांपल ऑफ स्कैन लॉजिक? सर आप स्कैन्स में आप जा सकते हैं और यहाँ पे आप वो पैरामीटर देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लॉजिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं उसको बनाने के लिए। जैसे इस स्कैन में हाई डिलीवरी है, और प्राइस 1 मंथ 3 मंथ 1 ईयर से वो तेजी में है, बॉलिंजर बैंड के ऊपर में हुआ, और साथ में एक फंडामेंटल ये है कि उसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अच्छा है। तो आप यहाँ पे हर स्कैन में जाकर आप उसका पैरामीटर देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर या क्लब करके बनाया गया स्कैन को है। Right, sir, it's is asking about there is number many numbers of stand strategies stock है, कौन सा यूज करें? सर यहाँ पे सर स्विंग भी है, पोजिशनल है, रिवर्सल्स है, तो आपको किस हिसाब से स्कैम मतलब ट्रेड पसंद है आप वहां से पिक कर सकते हैं। आप अगर मोमेंटम यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स वाले में आप वो कर सकते हैं कि आप जो रिवर्सल है बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स में क्या होता है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है क्योंकि प्राइस एक सपोर्ट से घूम रहा होता है या एक बॉटम बना के घूम रहा होता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर में वो किस टाइप के स्कैम्स में काम करना चाहेंगे। एज पर माई व्यू सर, अगर मेरे हिसाब से हमारा जो ये ईगल स्कैम्स है, अगर मेरा वोटिंग अगर बोलिएगा तो मैं स्कैम को वोट करूंगा, क्योंकि इसमें जो मेरा ऑब्जर्वेशन इतने दिन से रहा, अ, इसके स्कैम्स बहुत अच्छा काम करते हैं, ये वाले स्कैम्स जो ईगल मोमेंटम है हमारे पास। जय सिंह सर, फॉर सेक्टर रोटेशन सर, पवन जी he takes the strategies on that, you can ask the question about the sector rotation. सर एग्जिट स्टॉप सर यू कैन ट्रेल ऑल्सो, या फिर आप प्राइस टारगेट जैसे मैंने बताया था कि जो स्टॉप लॉस अगर 5% का है तो उसको आप 10% या 15% में कर सकते हैं, या फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं विद द मूविंग एवरेज और द सुपर ट्रेंड, अगर आपके पास कोई ऐसा इंडिकेटर है। सर आप सपोर्ट रीजन सर आप क्लब में पूछ सकते हैं सर, निफ्टी वगैरह का। हम सर यहाँ पे स्पेसिफिक कोई स्टॉक्स वगैरह पे या इंडेक्स पे ये नहीं करेंगे, ये
जो सेशन है वो सिर्फ स्कैम के लिए ही है। तो अगर वैसा कुछ क्वायरी है तो आप क्लब में पूछिए, हम लोग आपको वहाँ पे हेल्प कर देंगे। मानिक चंद सर हाउ टू ट्रेलिंग एग्जिट। सर यू कैन यूज अ 10 डे SMA, 20 डे SMA फॉर दैट, और फॉर द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। आप सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी उसको ट्रेल कर सकते हैं, या फिर 20 डे SMA, 10 डे SMA के हिसाब से आप उसको मूविंग एवरेज के हिसाब से भी उसको ट्रेल करके एग्जिट कर। सूरज कुमार सिंह आशीष पुरस्कृत करना हो सर, वो स्कैन हमारे पास है नहीं। आप सर कंबाइंड करके, वो हमारे पास सर बहुत पैरामीटर है सर, स्कैन में बहुत डेटा पॉइंट्स है। आप अपने हिसाब से सर स्कैन बना सकते हैं, और हम हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो उस स्कैन के प्रति में आप हम लोग से पूछ सकते हैं। सर डीवी स्लैब सर, वो तो बेरिश है सर। डीवी स्लैब तो हमारे पास जो स्कैन आया हुआ था वो तो बेरिश, वो इंट्राडे का था सर। Sunil sir is asking, as you keep stop loss low, how come percentage is calculated so fast for that kind of the setting? Sir, you can use this icon, sir. This icon for long position and short position, from where you will, from the point you have to drag on the downside, अगर आप कहाँ पे stop loss लगा रहे हैं, और उसके हिसाब से फिर आप उसको ड्रैग करके अपसाइड में अपना टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, आई थिंक आई एम डन। सर स्विंग सर, इंडिकेटर सर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, बट सर आप अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, अब मैं गौतम सिन्हा सर का क्वेरी का आंसर दे रहा हूँ। आप अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग स्कैन या कुछ भी मोमेंटम बेस्ड काम करें, तो सर आप वहाँ पे 20 डे SMA या 10 डे SMA या सुपर ट्रेंड, ये सारे इंडिकेटर आप सर यूज कर सकते हैं उसके लिए सर। ओके एवरीवन, थैंक यू।